The promises makes free from sin. Shows that God hasn't recognized your sin. अब वादे हमें गुनाहों से रहाई देते हैं। खुदा आपके गुनाह को कभी भी हिसाब में नहीं लाता। David said, "Blessed is the man who God will not impute sin to." And God will never impute sin over that token. Because the token is the paid sign that God has already received it. And you got the token for it. Your faith has bought it. दाऊद ने कहा, मुबारक है वो आदमी जिसका गुनाह खुदा हिसाब में नहीं लाएगा, और खुदा कभी भी इस निशान के ऊपर से गुनाह को मंसूब नहीं करेगा, क्योंकि निशान अदायगी की अलामत है कि खुदा इसे पहले ही हासिल कर चुका है और इसके लिए आपके पास निशान है। आपके ईमान ने इसे खरीदा है। And you have the purchase price of your redemption in your body. To worship Him and show forth His promises and power. और आपकी मखलसी की कीमत अदा हो चुकी है, इसलिए अपने बदन से उसकी इबादत करें और उसके वादों और कुदरत को जाहिर करें। The New Testament means new covenant. The blood means life. नए अहद नामे का मतलब है नया अहद, खून का मतलब है जिंदगी। The New Testament is the Holy Ghost Testament. The Holy Ghost giving testimony of what Jesus Christ has raised from the dead. Shows Jesus has met every requirement for us and is alive today. The token proves He is alive to identify Himself with us according to His promise. नया अहदनामा रुलकुस का अहदनामा है। रुलकुस यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही देता है और जाहिर करता है कि यस्सु ने हमारी तरफ से हमारी मांगें पूरी कर दी हैं और आज जिंदा है। निशान जाहिर करता है कि वो जिंदा है और उसने अपने वादे के मुताबिक अपनी शनाख्त हमारे साथ कराई है। Now how can a man read the Bible and see that he promised and see Christ return in these last days in the form of the Holy Ghost and identify himself alive? That's the token. That's the sign. That's the price paid. अब कैसे एक इंसान बाइबल पढ़ता और देखता है कि उसने ये वादा किया है कि मसीह इन आखिरी दिनों में रूल कुछ की सूरत में आता है और खुद को जिंदा जाहिर करता है। ये निशान है, ये अलामत है कि कीमत चुका दी गई है। Don't never rely upon some sensation. I felt chills run over my back and I smelled something, seen some blood in my hands or some oil. कभी भी किसी ख्याली चीज पर भरोसा ना करें। मुझे अपनी पीठ पर ठंडा ठंडा महसूस होता है और मैंने कुछ सूंघा, अपने हाथों पर लहू को देखा या थोड़ा तेल। Or I won my bachelor's degree, or I danced in the spirit, I shouted, I spoke in tongues. Them things might be all right. I have nothing against them, but that's not what I'm talking about. या मैंने अपनी बैचलर की डिग्री हासिल कर ली, या मैं रूम में नाचा, मैं चलाया, मैं गैर जुबानों में बोला, ये बातें ठीक हो सकती हैं। मेरे पास इनके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। I'm talking about the identification of the token, Jesus Christ raised and in us now identifying himself to vindicate this promised word of this day. Amen. मैं निशान की पहचान के बारे में बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह जी उठा है और अब हम में है, खुद को जाहिर कर रहा है, अपने वादों के कलाम को आज साबित कर रहा है। आमीन। Then you and Christ are one. God and Christ are one. That day you'll know that I'm in the Father, Father in me, I and you and me. तब आप और मसीह एक हैं, खुदा और मसीह एक हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। There is God made manifest in human flesh, showing himself alive after 2000 years. That's the token. खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ 2000 साल के बाद भी अपने आप को जिंदा दिखा रहा है, यही निशान है। If you're not in, get in real quick, friends. It might everlast be too late. We don't know. दोस्तों, हम नहीं जानते, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। अगर आप अंदर नहीं आए तो जल्दी अंदर आ जाएं। Show forth His presence, the New Testament, the blood, and it is alive now, making vindications. And because He is, we have the right of all He purchased for us. नए अहदनामे में खून उसकी हजूरी को लाता है और साबित करता है कि अब भी वो जिंदा है, क्योंकि वो है, हमारे पास सारे हकूक हैं
जो उसने हमारे लिए खरीदे हैं। A man that's got the baptism of the Holy Ghost, or a woman that's got the baptism of the Holy Ghost, has a right to everything that Jesus purchased for us. For that's the sign that we have. That's the buying power. एक आदमी जिसने रूल कुश का बपतिस्मा पाया है या एक औरत जिसने रूल कुश का बपतिस्मा पाया है, उसके पास हर चीज का हक है जो यीशु ने हमारे लिए खरीदी है, क्योंकि यही निशान है जो हमारे पास है, जो कि खरीदने की कुवत है। Say for instance, you say, well, Brother Branham, what do you mean? Here, make it plain now. I want you sick people to get this. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, ठीक है भाई ब्रैनम, आपका क्या मतलब है? यहाँ अब ये बहुत सादा है और मैं चाहता हूँ कि आप बीमार लोग इसे हासिल कर लें। Look, if I was starving to death, and I know a loaf of bread say cost $0.25, and along comes a brother and says, here's $0.25, Brother Branham. You're starving. Take this $0.25. Now, you know, I can be just as happy with that $0.25 in my hand as I can with the bread in my hand. Because I've got the purchase price, I've got the token that gets the bread. देखें, अगर मैं भूख से मर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि एक रोटी चाहिए, मान लें जैसे उसकी कीमत 25 पैसे है, और एक भाई आए और कहे, भाई ब्रैनम, यहाँ एक 25 पैसे का सिक्का है, आपको भूख लग रही है, ये 25 पैसे ले लो। अब आप जानते हैं कि मैं इस सिक्के को हासिल करके इतना ही खुश हो सकता हूँ जितना कि रोटी को हासिल करके, क्योंकि उसकी कीमत मुझे मिल गई है, मुझे निशान मिल गया है जिससे मैं रोटी ले सकता हूँ। And right there's the bread, and the only thing I'm holding the token, the $0.25 that buys the bread, I can be just as happy with the token as it came with the bread. और ठीक यहाँ पर रोटी है और मैं सिर्फ यही निशान अपने हाथ में लिए हुए 25 पैसे का सिक्का जो रोटी खरीद सकता है, मैं निशान के साथ इतना ही खुश हूँ जितना रोटी के साथ खुश हो सकता हूँ। Now, if you've got the baptism of the Holy Ghost, that is the token that you have every redemptive thing that Jesus died for belongs to you. It's in your hand. अब अगर आपको रूल कुश का बपतिस्मा मिल चुका है तो ये वो निशान है जो कि आपके पास हर छुटकारे की चीज है। यीशु आपके लिए मरा जिसका ताल्लुक आपसे है, ये आपके हाथ में है। Are you afraid to claim it? If I put it in my pocket and say, well, I don't know whether I can buy that bread or not, I'll starve to death. क्या आप इसका दावा करने से डरते हैं? और अगर मैं इसे अपनी जेब में रखता हूँ और कहता हूँ ठीक है, मैं नहीं जानता वो रोटी खरीद सकता हूँ कि नहीं, मैं भूख से मर जाऊंगा। But remember, the merchant says, I have one requirement, Mr. Branham, 1.25 cents. You can have the loaf of bread. I got it. Amen. That settles it. लेकिन याद रखें, व्यापारी कहता है, मेरी एक मांग है, जनाब ब्रैनम, सिर्फ 25 पैसे में आपको रोटी मिल सकती है। तो फिर मैंने उसे पा लिया, आमीन, क्योंकि यही तय हुआ था। That's the reason we don't see so many things done today. The token isn't displayed. The real token. Oh, we have all kinds of bogus, but I mean a real token. यही सबब है कि बहुत सी चीजें जो आज हो चुकी हैं हम नहीं देखते, इसलिए कि हकीकी निशान हमारी जिंदगी में जाहिर नहीं हुआ है हो, क्योंकि हमारे पास हर तरह के जाली निशान हैं, लेकिन मेरा मतलब हकीकी निशान से है। Look, then when we realize and present the token, the life it took for the token, the blood speaks for us. देखें, जब हम ये महसूस करते हैं और निशान को पेश करते हैं, तो वो जिंदगी जिसने उस निशान को लिया है, तो फिर खून हमारे लिए बोलता भी है। Remember, the covenant blood was recognized with the token, and the word assures us of the promise. The token is the sign that the purchase is made for us. याद रखें, अहद का खून निशान के साथ पहचाना गया और कलाम हमें वादे का एतमाद देता है। निशान इस बात की अलामत है कि हमारी अदायगी कर दी गई है। Now, if you're not included in that, of course, you'll never get nothing. You're just walking through a prayer line, walking back out, walking up the altar and looking up, walking back out. अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आप कभी भी कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ दुआया कतार में से गुजर रहे हैं और फिर निकलकर वापस जा रहे हैं, चलते हुए मस्बा तक आ रहे हैं और देखकर वापस चले गए हैं। But, oh, brother, when that token's once placed in your heart,
and you know it's a resurrection of Jesus Christ in you. Something's happening. There is nothing going to turn you. You know where you belong. लेकिन ओ भाई, जब वो निशान एक बार आपके दिल में रख दिया गया है और आप जानते हैं कि ये यीशु मसीह का जी उठना आपके अंदर है, तो कुछ हो रहा है, तो आपको कोई चीज वापस नहीं ले जा सकती। आप जानते हैं कि आप कहां पर हैं। Full obedience to the whole word of God entitles you to the token and nothing else. Blessed is he that does all of his commandments might have right to the tree of life. खुदा के कलाम की पूरी ताबेदारी आपको निशान के लिए हकदार बनाती है और कुछ नहीं। मुबारक है वो जो उसके सारे अहकामात को मानता है, उसके पास जिंदगी के दरख्त के पास जाने का हक है। Then when we pray, we must have the token to present with our prayers. I don't fail to get that. तब जब हम दुआ करते हैं तो हमारे पास जाहिर करने के लिए हमारी दुआओं के साथ निशान होना चाहिए। अब इसे लेने में नाकाम ना हो। When you pray, you must have the token to hold over your prayer. If you're not, keep praying until the token comes, because you're not promised to receive it. You've got to have this token first. That's a paying price. Your faith to believe it. जब आप दुआ करें तो आपके पास अपनी दुआ को थामे रहने के लिए निशान होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप तब तक दुआ करें जब तक निशान आ ना जाए। यही वजह है कि आप निशान को हासिल करने का वादा नहीं करते। समझे, पहले आपके पास निशान होना चाहिए। ये अदा करने की कीमत है। अपने ईमान से इस पर भरोसा रखें। Now, sign of full obedience. Fear is gone. Paul tells us that the blood speaks better things. You say the blood speaks. Yeah, the blood speaks. अब पूरी ताबेदारी ही निशान है जिससे खौफ भाग जाता है। पालूस हमें यह बताता है कि लहू अच्छी बातें बोलता है। आप कहते हैं क्या लहू बोलता है? हाँ, लहू बोलता है। In Genesis 4:10, we find out that God said that Abel's blood spoke out from the earth. We find out in Hebrews 12 that the blood of the covenant of Christ speaks better things than that of Abel. पदैश 4:10 में हम पाते हैं कि खुदा ने कहा कि काइन बल्कि हाबल का लहू जमीन से पुकारता है। हम अब्रानियों 12 में पाते हैं कि मसीह के अहद का लहू हाबल के लहू से बेहतर बातें बताता है। We find out the blood does speak. It speaks in your behalf. The life that's in you speaks for the shed blood. Amen. समझे, हमें मालूम होता है कि लहू बोलता है। ये आपकी तरफ से बोलता है। जो जिंदगी आप में है वो बहाए गए लहू में से बोलती है। आमीन। ओ भाई, I wished everybody could see that. See? If you can see what it is, it's the life that's in you. See, that blood is identifying you with it. Amen. It's a token. मैं चाहता हूं कि हर कोई इसे देख सके। समझे, अगर आप देख सकें कि ये क्या है, ये जिंदगी है जो कि आप में है। देखें, लहू इसे आपके साथ शनाख्त करा रहा है। ये निशान है। What is the blood was shed for you? You've accepted the life is coming to you. You have the token. That's the Holy Spirit. ये क्या है? लहू आपके लिए बहाया गया था, आपने कबूल किया है और जिंदगी आप में आ चुकी है। आपके पास निशान है जो कि रूल कुस है। Then when we pray, we must have the token to present with our prayers, as I said. And now, believe for ourselves and apply the token to the whole family. Like in Egypt, Jericho, or either in Acts 16:31, we find out that Paul told the Roman centurion, say, believe thou and all thy house shall be saved. तब जब हम दुआ करते हैं तो हमारे पास निशान होना चाहिए जो हमारी दुआओं को पेश करे, जैसा कि मैंने कहा, और आप अपने लिए यकीन करें और निशान का अपने पूरे खानदान पर इतलाक करें, जैसा कि मिस्र में, यरू में या फिर इमाल 16:31 में पाते हैं कि पालूस ने रोमी सूबेदार से कहा, तू ईमान रख, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। Apply it to your family. You got an unsaved child, lay the token right on top of him and say, Lord God, I claim him. Stay right there. You got a mother or loved one that's lost, lay that token on him. Say, Lord God, I claim it. इसे अपने घराने पर लागू करें। अगर आपके पास ऐसा बच्चा है जो महफूज नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर निशान रखें।
कहें, खुदावंद खुदा, मैं इसका दावा करता हूँ, ठीक वहीं खड़े रहें। अगर आपकी माँ या कोई प्यारा जो खोया हुआ है तो उन पर निशान रखें, कहें, खुदावंद खुदा, मैं इसका दावा करता हूँ। Move out of all the worldly trash out of your house. Get ready for it. Burn up your shorts. Throw your card tables away. Get rid of your cigarettes. सारी दुनियावी गंदगी, कूड़े को बाहर निकाल दें, अपने घर से बिल्कुल बाहर। इसके लिए तैयार हो जाएं। अपने छोटे कपड़े जला दें, अपने ताश की मेज को दूर फेंक दें, अपने सिगरेटों से पीछा छुड़ाएं। Dump your unbelief and your church papers in the trash can where they belong. Amen. Then you're getting ready. अपनी कम एतकादी और कलीसिया के कागजों को कूड़ेदान में फेंक दें, जहां से उनका ताल्लुक है। आमीन। तब आप तैयार हो जाएं। Then what do? Then apply the token in prayer with real evidence, real faith. Apply it with confidence. तब क्या करें? तब निशान को दुआ में असल गवाही के साथ, असल ईमान के साथ लागू करें। इसे लागू करें, एतमाद के साथ लागू करें। When you apply the token, know that you're cleaned up. If our hearts condemn us not, then we have our request. जब आप निशान लागू करते हैं, ये जान लें कि आप पाक हो गए हैं। अगर हमारे दिल हमें मुजरिम ना ठहराएं, तब हम अपनी अर्ज पेश कर सकते हैं। As long as you people are doing them things that's wrong, how are you going to ask God to do anything for you? When you know you're wrong. जब तक आप लोग वो गलत काम कर रहे हैं, तो फिर आप खुदा से कैसे कह सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ करे, जबकि आप जानते हैं कि आप गलत हैं। That's the reason we just stagger up and stagger back. I'm not saying this to hurt. I'm saying this to straighten out, to get things right. Amen. How are you going to build it up on the chars of a Sodom and Gomorrah? Amen. Come back. यही वजह है कि हम आगे पीछे लड़खड़ाते हैं। मैं ये ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये दुरुस्त करने के लिए कह रहा हूं कि काम ठीक हो जाए। आप कैसे सदोम और अमोरा की जली हुई राख पर तमीर करने जा रहे हैं? वापिस आएं। Associations and ministers that let the people do anything and get by and just put their name on a book and call them this, that, and the other. When it's a disgrace. खुदाम और उनके साथी वो लोगों को कुछ भी करने देते हैं और इकट्ठे रहते और उनके नाम किताब में रखते और उन्हें ये वो दूसरे कहते हैं, जबकि ये बदनामी है। It's got so that faith is something's not even, don't even, very some don't even know what it even is. They got a lot of hope but no faith. और ये ऐसा लगता है कि उनका ईमान कुछ चीज है, मगर यहाँ तक कि कुछ भी नहीं होता। कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है। उनके पास एक उम्मीद है लेकिन ईमान नहीं। You've got to get back to everything's combed out and clean. Amen. Then take your token that you know that it's Jesus Christ in you. Then apply. आपको वहीं वापस जाना है। हर चीज जांची गई और साफ की गई है, तब अपना निशान लें जो कि आप जानते हैं कि ये यीशु मसीह है, आप में है, तब उसे लागू करें। Something don't happen, there's something wrong. Go back again. Got the wrong thing in your hand. He promised it. He was the one who promised it. Apply it. अगर कुछ नहीं होता तो कुछ गड़बड़ है, फिर वापस जाएं। आपने गलत चीज को अपने हाथ में लिया है। उसने ये वादा किया है, वही एक था जिसने इसका वादा किया है। इसे लागू करें। Read Ephesians 2:12 sometime if you wish to. You find out there. Notice in Hebrews 9:11 also, Paul said, serving the living God with living articles. इफिसियों 2:12 पढ़ें। बाज औकात अगर आपको इसकी हसरत है तो आप इसे वहां पाएंगे। गौर करें, अब्रानियों 9:11 में इसी तरह है। पालूस ने कहा, जिंदा खुदा की खिदमत उसके जिंदा मुकाशफात के साथ करना। Not saying just like I go up like a Hebrew used to, take his sacrifice and come down the road with a big fat bullock and lay his hands up on it and identify himself and shed the blood, go back justified. Jehovah required it. He did it. ऐसा कहते हुए नहीं कि मैं जाऊंगा और अब्रानी लोगों की तरह करूंगा जैसे वो किया करते थे। अपनी कुर्बानी को लेते, एक मोटा ताजा बैल लेते, उसको राह में लाते और अपने हाथों को उसके ऊपर रखते और अपने आप को उसके साथ शनाख्त करते और उसे ज़बह करते और रास्तबाज ठहर कर वापिस जाते, इसलिए कि ये यहोवा की मांग थी। उसने ये किया।